Hello, my dear student of class 11th science. Today we will discuss the concept of first chapter set. कल हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, किसको हम सेट बोलते हैं, उसको हमारे पास में लिखने के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमें उससे आगे डिस्कस करना है नेक्स्ट कंसेप्ट। यदि कल की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर कीजिए, कोई आपको बात क्लियर ना हो पाई हो तो। चलिए, हमने कल डिस्कस किया था सेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेट। What is the definition of set? Set is a well-defined collection of distinct objects. The pure definition of set is the well-defined collection of distinct objects. Here we have two words. First of all, well-defined, and second is distinct object. Well-defined means a statement which is free from the confusion, means free from the doubts, which is clear. You can understand, you can write, you can observe, you can search the information which is written in the statement. Clear? So set is the well-defined collection of distinct object. Distinct object means the repetition of object. Object may be any element, any name, any month of the year, any name of any person. Any object means any animal, maybe a name of best batsman of T20 in India. Clear? So distinct object may be anyone. So don't confuse with this word object. Object means any element, which may be any alphabet like ABCD, which may be any numeric number like 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 0, 1/2, 9/2, 7/2, 3/5. So distinct object means the repetition of the element is not allowed in the set. Set is written in the curly braces. Clear? And whenever we are writing the element in this within this curly braces, we have to separate that element with the help of comma, like this: 1, 2, 3, 4. Clear? So remember always that set is the well-defined collection of distinct object. Object may be any numeric number, any alphabet, any name of novels, name of animals, name of fruits, and so on. So don't confuse with this word object. Clear? So pure definition of set is that set is the well-defined collection of distinct objects. Clear? The number of objects is written within this curly braces. Clear? And we have to separate the element with the help of comma. comma की हेल्प से उनको हम सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि सेट के टाइप्स, सेट को हम कैसे लिखते हैं। बेसिकली वी हैव टू फॉर्म टू राइट द सेट. वन ऑफ देम इज roster form, another is builder form. Roster form is the simplest form in which object is in the simplest form. But whenever we talk about the builder form से नाम से चल रहा है, पता, बिल्डर एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा रूल वहां आपको मिलेगा जिसको आप स्टडी करेंगे, उसको अपने माइंड में आप इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद में आप उस रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे, तब जाके वो सेट बनता है।
तो एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा रूल जो सेट को बिल्डअप करेगा, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन एक्सरसाइज 0.1.2 कन्वर्जन बिटवीन रोस्टर फॉर्म टू बिल्डर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म चलता रहेगा। आपको रोस्टर फॉर्म देंगे तो बिल्डर फॉर्म बनवाएंगे आपसे, आपको बिल्डर फॉर्म देंगे तो रोस्टर फॉर्म बनवाएंगे आपसे, कई बार मैचिंग करवाएंगे, एक तरफ दे देंगे रोस्टर फॉर्म और जो साइड होगी सामने वाली वहां पे लिख देंगे वो बिल्डर फॉर्म, फिर आपसे मैचिंग करवाएंगे। क्लियर? सो इतना हार्ड नहीं है, समझ के चलें। रोस्टर फॉर्म में सेट ऐसे मिलता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इट इज रोस्टर फॉर्म इन विच वी हैव नो रूल। क्लियर? यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम द रूल, सो इट इज रोस्टर फॉर्म। बट whenever we talk about the builder form contain always a rule. क्लियर? वहां पे आपको एक रूल मिलेगा, सुनना है ना? जैसे वो बोल देंगे कि a equals to x such that x belongs to natural number। ये जो साइन यूज करते हैं इसको बोलते हैं belongs to। जैसे आप बोलते हैं ना आई बिलोंग्स टू थाना भवन, आई बिलोंग्स टू जलालाबाद, उस तरह से। सो जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। सो सेट A equals to x such that x belongs to natural number and x equals to 2n and where n lies from 1 to 6। अब देखो यहां पे कितने रूल बन गए। पहला रूल कि जो भी एलिमेंट आएगा मींस x टाइप का जो आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट रूल। देन ये जो x होगा, जो नेचुरल नंबर होगा, ये 2 टाइम ऑफ n होगा और ये n क्या होगा, कहां से मिलेगा, उसके लिए जाएंगे हम इधर। n क्या है, n 1 से लेके 6 के बीच में है। क्लियर? सो n लाइज फ्रॉम 1 to 6, 1 नहीं है 6 नहीं है, उन दोनों के बीच में। इट मीन्स n क्या होगा, n हो जाएगा 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए सेट को कन्वर्ट करेंगे इस बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। कैसे, जरा आइए। अब देखो n क्या है, 2, 3, 4, 5, तो ये वैल्यूज पुट कीजिए यहां पे। n को रखेंगे आप 2, 2 2 जा 4, सो सेट A इक्वल्स टू आ जाएगा 4। 4 इज द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस सेट। नेक्स्ट 3 रखिए यहाँ पे, 3 2 जा 6, उसके बाद 4 लीजिए वहां से, 4 रखिए इधर, 4 2 जा 8, उसके बाद 5 को रखिए तो बनेगा 10। सो इस तरह से हमने एक बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया है रोस्टर फॉर्म में। इट इज रोस्टर फॉर्म, इट इज बिल्डर फॉर्म। क्लियर? चलिए अब इसके बाद में हमने डिस्कस किए थे कल यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें फर्स्ट आया था वॉइड सेट। वॉइड सेट के भी हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जो खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसको बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर? चलिए तो ध्यान रखना है आपको
टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट था वॉइड सेट। वॉइड सेट को हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है लाइक दिस, उसको बोलते हैं नल सेट। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव। दिस इज फाइव। फाइव इज द नोटेशन ऑफ द एम्प्टी सेट, रिमेंबर इट ऑलवेज। इसके बाद हमने डिस्कस किया था वहां पे इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट जिसके अंदर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों सेम रहे। ऐसे सेट जिनके अंदर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी सेम मेंटेन हो, two or more than two set is said to be equal whenever they have same quantity as well as same quality। क्लियर? चलिए इसका एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1+2 2 4 8 6। देखो ऑर्डर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सेट में, ये बात आप ध्यान रखें। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, समझना है कुछ? सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए मेरे पास में एक सेट दूसरा है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 4 8 6 2। तो ये दोनों सेट, सेट ए और सेट बी, दोनों के दोनों अपने आप में इक्वल सेट हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सेट ए और सेट बी दोनों में क्वालिटी एंड क्वांटिटी इक्वल है। सेट ए में देखिए, सेट बी में देखिए, एलिमेंट की क्वांटिटी दोनों में 4 4 है। यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, उतने एलिमेंट यहाँ पे हैं। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है। सो ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। ए और बी अपने आप में इक्वल सेट हैं, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद में ध्यान रहे बिलोंग्स टू। जैसे हमारे पास एक सेट है, सपोज ए 1 2 3 4, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेकिन जैसा 5 है, 5 यहां पे नहीं है, तो 5 को लिखना पड़ेगा 5 डज नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स टू लिख करके इसको काट देते हैं, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये मतलब हुआ बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले जो आपके एक्सरसाइज पॉइंट 1 है, वहां पे तो आपसे पूछे गए हैं सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि सेट क्या है। पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन कौन सेट है, कौन कौन नहीं है। तो वहां पे आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए
कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो अपने आप में वेल डिफाइंड है या नहीं है, वहां भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यदि वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पॉइंट 1 में पॉइंट 2 में आपसे ये पूछा गया है, जिसको आप आज पूरा कर लेंगे। फिर यहां पे नया टर्म आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? जब आप एक सेट ऐसा बनाएं कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट के अंदर कंटेन हो जाएं, तो तब ऐसे सेट को बोलते हैं सबसेट ऑफ दैट सेट। सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से, ठीक है। सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। तो ध्यान रखना है, एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। क्लियर? जैसा कि सेट ए आप देख रहे हैं, तो सेट ए के एलिमेंट 2, 4, 6 सेट बी में ऑलरेडी कंटेन कर रहे हैं। सो सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो इस तरह से इसको आप समझेंगे। किसी भी सेट के कितने बन सकते हैं सबसेट, इस बात को अब हम समझते हैं। तो आइए जरा, मान लीजिए आपने एक सेट ए लिया और सेट ए में आपने एलिमेंट 1, 2, 3 लिए। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो यहां बन सकते हैं टू द पावर n। टू द पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब आप कहेंगे ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं वो काउंट कीजिए और रखिए। जैसा सेट ए में अभी 3 एलिमेंट हैं, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे टू द पावर 3, इट मीन्स 8। और वो कैसे बनेंगे तो जरा सुनिए। सबसेट जिसमें सिंगल एलिमेंट 1 हो सकता है, ये बनेगा। सिंगल एलिमेंट 2 रख दीजिए, ये भी सबसेट बन गया। सिंगल एलिमेंट 3 रख दीजिए, सबसेट बन गया। फिर लाइए आप दो को एक साथ, 2 एलिमेंट इन अ सेट। जैसे 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया, 2, 3 आ गया। तो इस तरह से ये बनते हैं। अब तीनों को लाइए एक साथ, 1, 2, 3 आ गया और लास्ट में 5। अब आप कहेंगे 5 क्या है? देखो, हमेशा आप याद रखें, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्लियर? 5 is the subset of all set. Phi is the subset of all set.
ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर एक सेट ए दिया गया था जिसमें एलिमेंट केवल कितने थे, 3 थे, 1 2 3। लेकिन हमने फिर उस सेट ए से सबसेट बना लिए हैं, और सबसेट जब बनाए गए हैं तो आप देख सकते हैं सबसेट बनाए गए हैं 8। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लीजिए, फिर डबल डबल एलिमेंट लीजिए, फिर एक साथ में ट्रिपल एलिमेंट लीजिए, और लास्ट में 5 सब में आएगा। ये बात आप याद रखें, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के रिगार्डिंग सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे वो आपसे कहेंगे भाई एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 6 8। तो बताओ क्या ए सबसेट है बी के लिए? तो आप यहां पे कहेंगे कि भाई सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो तो सेट बी में है ही नहीं। तो जब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं है तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पावर सेट। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर सेट। पावर सेट को लिखते हैं हम कैपिटल P से। यदि आपको सेट ए दिया गया है और जिसके लिए आपको बनाना है पावर सेट, तो सेट ए के पावर सेट को हम लिखेंगे PA से। ठीक है, ध्यान रहे ये बात, किसी भी सेट के पावर सेट को हम लिखेंगे P से। सेट A है तो PA, सेट B है तो PB, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए जैसे अब सुन लीजिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट is a set which contain the all subset in it। पावर सेट अपने आप में एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन करता है सभी सबसेट को। सो आप ध्यान रखें, पावर सेट इज अ सेट विच कंटेन द ऑल सबसेट। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए है 2 4 6। अब जब आप बनाएंगे सेट ए के लिए पावर सेट PA, तो PA में एलिमेंट आएगा 2 4 6 2 4, उसके बाद 4 6 2 6 2 4 6 5। क्लियर? सो इस तरह से सेट ए का जो बनाया गया है पावर सेट, उसमें वो सभी सबसेट इंक्लूड हो गए जो बन सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे।
मान लीजिए क्वेश्चन है कि सेट A इक्वल्स टू 2 4 6 8। अब हमें चाहिए इसका पावर सेट। तो पावर सेट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 4 6 8 2 4, उसके बाद में आएगा 2 6, फिर आएगा 2 8, फिर आएगा 4 6 4 8, उसके बाद आएगा 6 8। क्लियर। उसके बाद में आएंगे फिर एक साथ 3 एलिमेंट, जैसे 2 4 6, जैसे 4 6 8, जैसे 2 6 8। क्लियर। उसके बाद में आएंगे चारों एक साथ 2 4 6 8, फिर आएगा 5। तो इस तरह से आप एक सेट का पावर सेट बना सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पावर सेट इज द सेट विच कंटेन द टोटल सबसेट ऑफ दैट सेट। किसी सेट के जितने भी बन सकते हैं सबसेट, उन सबको आप एक सेट के अंदर रख दीजिए तो आ जाएगा पावर सेट। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। सो पावर सेट सिंपली अ सेट विच कंटेन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो अभी आज की वीडियो में इतना पढ़ेंगे हम, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करें, समझें और लिखें। एक्सरसाइज 1.1 आप कर सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, 1.3 वो आप हाफ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में, तो आप फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर, you can ask your problem frequently on WhatsApp और by call। क्लियर। सभी के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अपने स्टडी को आप रेगुलर रखें। जो बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको भेज रहे हैं PDF, उनको आप नोट डाउन करें क्लियरली, अच्छी तरह से उनको आप नोट डाउन करें, लिखें स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, with a proper sequence। तो आपने यहाँ पे आज इस वीडियो में ये बात समझ ली है कि भाई सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सेट के टाइप्स, सेट कैसे लिखते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट चैप्टर जो आपके यहाँ पे सेट है NCERT में, वो हम पढ़ा रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन RD शर्मा जो आपके पास हेल्प बुक है उससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं RD शर्मा को मना नहीं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जो वीडियो बन रही है उसमें ज्यादातर मोस्टली हम NCERT को फॉलो करेंगे, लेकिन यदि आपको कोई डाउट है RD शर्मा में या कोई अदर हेल्प बुक तुम्हारे पास में है, वहां पे कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी उसको आप नहीं पूछ सकते हैं, उसको भी आप पूछ सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपको यदि कोई प्रॉब्लम RD शर्मा में आ रही है, हेल्प बुक में आ रही है, तो उसको आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर सेपरेटली आपको मैं समझा सकूं। जिस बच्चे की प्रॉब्लम है मैं उस बच्चों को भी समझा सकता हूं सेपरेटली, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तब। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं इस वीडियो में, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट एंड विद न्यू एक्सरसाइज। क्लियर।